Okay. So if yeah, please, as per your response in the mail, I just do it. But if you have, if any changes are there, मैं उसको कर दूंगा, टेंशन मत लो. जो भी प्लस माइनस है मैं कर दूंगा. Okay. So I think I'm audible to everyone. मेरी आवाज आ रही है सबको, तो एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर दो. इसका रिस्पॉन्स. सो लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ था, प्लीज कोई चैट बॉक्स में कर बता दो. व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट सेशन. हमने कुछ टेस्ट डिस्कस किए. हिंट आई एम गिविंग यू. which taste we have discussed in the last session. Also हमने डिस्कस किया था transferring the parameters from primary to secondary as well as secondary to primary. वो भी डिस्कस किया था. We also discuss about the voltage regulation, if you remember. So what is the definition of voltage regulation? Any one of you, please let me know in the chat box. तो लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था इस टॉपिक के ऊपर. had a discussion on the transferring or transfer the parameters from primary to secondary, as well as similar way secondary primary. तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. ये डिस्कशन ऑन दिस. After discussing this transferring the parameter from primary to secondary and secondary to primary, we had a discussion on the voltage regulation. After discussing the voltage regulation, we discuss start किया था टेस्ट पे, और टेस्ट में डिस्कस किया था ओपन सर्किट टेस्ट एंड दी शॉर्ट सर्किट टेस्ट. What we are going to discuss today, आज क्या डिस्कस करेंगे, आज का एजेंडा है हमारा discuss about the efficiency of transformer. We will also discuss about the, because efficiency discuss करना हो तो सबसे पहले we need to also discuss regarding the losses in the transformer. ये भी डिस्कस करना पड़ेगा. ये डिस्कस होगा, उसके बाद ही कुछ efficiency पे कंक्लूड कर पाएंगे. So this is the agenda of today's session, and we are going to also discuss the one more taste. The one more taste is the that is the Sumner taste. Let me put it on your screen also. और एक टेस्ट डिस्कस होगा, that is the Sumner taste on the ट्रांसफॉर्मर. तो ये एक चीज आप डिस्कस करने वाले. तो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन. I'm sharing your slides with you.
एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ लास्ट सेशन का, तो आपको पता चल जाए कि ये डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था। आपकी स्क्रीन के ऊपर स्लाइड दिख रही है? यस और नो? ओके, सो हियर इज द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमने सबसे पहले इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था इक्विवेलेंट सर्किट। एंड आफ्टर डिस्कसिंग द इक्विवेलेंट सर्किट हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था ये पॉइंट पे। सपोज आई वांट टू ट्रांसफर द प्राइमरी पैरामीटर ऑन द सेकेंडरी, मुझे प्राइमरी को सेकेंडरी पे भेजना है या सेकेंडरी को प्राइमरी पे भेजना है, तो किस तरह से भेज सकते हैं? व्हाट इज द मेथड or how we can transfer those parameter from primary to secondary or from the secondary to primary. So this is the very important thing in the discussion. So let's say कि मुझे यहाँ से ये secondary resistance को यहाँ से यहाँ भेजना है। Just give me a minute. So here, if you look at this thing, what is important over here कि इसको यहाँ पे भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? We need to transfer, if I want to transfer this parameter from secondary to primary, then what is the method? What is the method for it? And after you just look at this, just give me, I'm having issue in the network connectivity. Let me refresh my internet connection. Okay, now it is refreshed. इसको यहाँ पे भेजना है तो क्या याद रखना पड़ेगा कि सपोज ये यहाँ पे 1000 वॉट का लॉस कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पे भेजो तो उसका वो काम तो सेम ही रहना चाहिए। इट शुड क्रिएट द सेम अमाउंट ऑफ लॉस ऑन दी दिस साइड। सो if it is creating the loss of I2 square R2 on the secondary side, so when you transfer this on this primary side, तो उसका नया वैल्यू क्या आएगा? R2 डैश। तो वहां पे करंट कितना है? I1। तो न्यू R2 डैश वैल्यू इज इक्वल टू I2 by I1 स्क्वायर इंटू R2। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस इज द R2 by, तो इसका आंसर आ जाएगा R2 by K स्क्वायर। So similar way you can transfer these parameters. And this is the टोटल ट्रांसफर पैरामीटर। सो अगेन यहाँ पे देखो आपने क्या क्या है, इस केस के अंदर हमने प्राइमरी को सेकेंडरी में ट्रांसफर किया है इस तरह से। जस्ट लुक एट ऑन दिस, दिस इज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इट। एंड ये डिस्कस किया था मैं लास्ट सेशन में अबाउट द टेस्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मर, कि कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो हमने डिस्कस किया था ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट से क्या फाइंड होगा? विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट we can find out the losses in the machine। कौन से लॉसेस? नो लोड लॉसेस। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या, और दूसरा नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या फाइंड करेंगे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम फाइंड कर सकेंगे कॉपर लॉस इन द मशीन, सो दैट आर ऑन योर स्क्रीन। एंड ऑल्सो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी आपके सामने। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था
voltage regulation in the transformer, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज, उसको बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, और उसके फेजर से डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में. जस्ट लुक एट दिस पैरामीटर्स. देन वी जस्ट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन द एफिशिएंसी. और उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, एडी करंट लॉस क्या है, और ये है इक्वेशन दोनों है. तो हिस्टैरिसीस लॉस किसको प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को. प्लीज ध्यान रखें यहाँ पे, हिस्टैरिसीस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, while eddy current loss, it is proportional to the frequency square. So please keep this on your mind. अब ट्रांसफॉर्मर ने और कौन सा लॉस होगा, तो यहाँ पे दूसरा लॉस होगा लॉस इन दी प्राइमरी, उसको बोलेगा I1 स्क्वायर R1. लॉस इन दी सेकेंडरी, उसको बोलेगा I2 स्क्वायर R2. और टोटल लॉस आएगा यहाँ पे I1 स्क्वायर और R01 एंड I2 स्क्वायर R02. सो दिस इज दी लॉसेस. ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी के बारे में, कि कब ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी. यहाँ पे ये जो पार्ट है, दैट दैट दिस इज द डेरिवेशन जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि यहाँ पे हम ये डिस्कशन करेंगे. नाउ if I talk about the losses, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर यहाँ पे दो लॉस हो गए. I1 square R01. Now what is R01? R01 is equal to R1, sorry, is equal to R1 plus R2 dash. Again I'm repeating, R2 dash क्या है, सेकेंडरी को, ये सेकेंडरी रजिस्टेंस को प्राइमरी किया, अब ट्रांसफर किया प्राइमरी पे. सो व्हाट इज R01? R01 इज टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस transfer to the on the primary. Now if you sum of losses due to the hysteresis and eddy current, तो हमारे अंदर hysteresis और eddy current के losses को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको बोलेंगे iron loss, और core loss is equal to PH plus PE. What is PH? PH is your hysteresis loss, and what is P? It is your eddy current loss. Now efficiency eta is equal to, efficiency equation क्या है, it is the output upon losses. ओके, सो एफिशिएंसी हम दो तरह का डिफाइन करें, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. दो तरह से एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हैं. सो इफ यू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, तो ये इक्वेशन आएगा, दैट इज VS IS cos 5 P copper plus P core and VS IS cos 5. सो अगेन, एंड इफ यू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ इनपुट, इस तरह से डिफाइन करोगे, मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे डिफाइन करोगे, इस तरह से लोगे तो अपना इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा. So the equation will be like this if you define the efficiency in this way. तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा इनपुट माइनस लॉस एंड अपॉन इनपुट इज इक्वल टू योर एफिशिएंसी. अब इनपुट माइनस लॉस को आप क्या बोलोगे, आउटपुट. तो दैट इज अगेन इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज लेट मी नो इनटू द चैट बॉक्स इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड.
Okay, so now moving to the next part. Here, your V I V1 I1 cos 5 is your input. Just look at this equation. So this is ये हमारा input है. अब यहाँ पे लॉस कितना होगा हमारा? लॉस इज इक्वल टू, यहाँ पे तीन चीज आएगी. एक तो कॉपर लॉस प्लस योर आयरन लॉस. आयरन लॉस में क्या आएगा? एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस. जस्ट लुक एट दिस. सो लॉसेस अपॉन द इनपुट. तो यहाँ पे लॉस कितना आएगा? I1 स्क्वायर R01. यहाँ पे इसको क्या लिया मैंने? WI. सो WI इज व्हाट? ये है हमारा टोटल कोर लॉस इन माय ट्रांसफार्मर. सो अल्टीमेटली इफ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, किस तरह से? जस्ट सेपरेट ऑल द टर्म्स. To simplify this, what you need to do, वन यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? I1 R01 अपॉन V1 cos phi 1 and this is the simplification you will get. अब यहाँ पे एफिशिएंसी का इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा. सपोज आपको मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है, यू नीड टू डू दिस. लाइक सो डी ईटा बाय di1 इज इक्वल टू 0. तो इसको आपको करना पड़ेगा इक्वेट टू 0 बाय डिफरेंशिएटिंग इट. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का आएगा आंसर 0. मैं आपको फिर से दिखाता हूँ. आपको करना क्या है? टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, उसके लिए सिंपली क्या करना है? डी ईटा बाय di1 और इसको इक्वेट टू करना है 0. ये इक्वेशन को आपको करना है डिफरेंशिएट. अब जैसे ही 1 का डिफरेंशिएशन करोगे उसका आंसर आएगा 0. जस्ट लुक एट दिस टर्म. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज ऑलवेज 0. अब आप ये टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टर्म. तो यहाँ पे I1 निकल जाएगा, R01 बचेगा और दिस विल बी एज इट इज बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय x का आपको डिफरेंशिएशन पता हो तो आंसर आएगा 1 बाय x स्क्वायर. इफ यू नो दिस, सो wi is as it is, v1 is as it is. 1 बाय I1 का यहाँ पे देख लो, 1 बाय I1 स्क्वायर होगा and cos 5 as it is. Is it clear? If you are clear up to this point, then let me know into the chat box. Okay, any query, any doubt? Okay, now moving to the next point. Okay, now what you need to do? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो इक्वल टू 0 होगा, तो इसको इक्वल टू आएगा 0. सो दिस टर्म विल गो एज दिस इज माइनस, ये जाएगी इस साइड पे. तो कुछ आंसर इस तरह से आएगा. लेट मी राइट यू ऑन योर स्क्रीन. सो आंसर विल बी लाइक दिस, दैट R01 अपॉन V1 cos phi 1 is equal to WI upon V1 square I1 square cos phi 1. कुछ इस तरह से आएगा आपका आंसर. So if I write this answer on your screen, then it will become like this. Yes or no? मैंने आपको बोला था इस तरह से आएगा. So this is equal. Now what is this? यहाँ पे R01 V1 cos phi 1 एंड यहाँ पे देखो ये टर्म कैंसिल होगी. V1 cos phi 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा V1 cos phi 1 कैंसिल हो जाएगा. Yes or no? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहां से मैं इसको भेज देता हूं यहाँ पे. आई एम सेंडिंग दिस टर्म ऑन दिस साइड. सो माय आंसर कैसा आएगा? WI is equal to
I1 स्क्वायर R01। अब WI क्या है? दैट इज माय कोर लॉस, दिस इज माय कोर लॉस, और it is my iron loss. And what is the I1 square R01? That is my copper loss. So what is it maximum condition? तो आपकी ट्रांसफार्मर की कंडीशन कब मैक्सिमम होगी? When your core loss is equal to your copper loss. Is it clear? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है आपकी GTU एग्जाम के लिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपको कि डिराइव द मैक्सिमम कंडीशन फॉर दी और फॉर दी ट्रांसफार्मर। कब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी उसका इक्वेशन डिराइव करो। ओके, एनी डाउट प्लीज? So please let me know into the chat box किसी को कोई डाउट हो तो, otherwise I think I should go to the next discussion. ओके चलो नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थियरी लॉसेस। ओके, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट थियरी की कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। सो सपोज फुल लोड सेकेंडरी करंट आप इसको I12 लेते हो, सेकेंडरी करंट मैक्सिमम एफिशिएंसी कुछ इस तरह का है। तो दिस इज इक्वेशन करंट, ये आपको याद रखने, करंट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पर मल्टीप्लाई आयरन लॉस अपॉन full load copper loss. So this is very important thing. Yeah. Next important theory is the all day efficiency. अब यहाँ पे all day efficiency का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि मैं कॉलेज का जो अपना ट्रांसफर है उसकी बात करता हूँ। तो अभी आपको पता होगा कि कॉलेज के ट्रांसफॉर्मर के साथ कितना लोड कनेक्ट किया गया हुआ है। डू वी इज इट पॉसिबल दैट यू कैन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि how much exact load is connected to the transformer which is there in the campus? Is it possible or it is not possible? So those transformer who are there in the distribution network, the load which is connected with those transformer, it is not fixed. It keeps on changing. So it is very difficult to find out its efficiency. मैं सिंपल एग्जांपल लेगी, जो हमारा कॉलेज का ट्रांसफॉर्मर है उसके साथ जो लोड कनेक्ट किया हुआ है वो सुबह 6 बजे मिनिमम होगा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड माय एस्पेक्ट। फिर जैसे ही सब लोग उठना चालू करेंगे at 7 o'clock the load is going to increase. Give me a moment. So here the thing which you should understand कि जो हमारे कॉलेज का जो ट्रांसफॉर्मर है उसका लोड सुबह कम होगा at the 6 o'clock because everyone is sleeping. बट जैसे ही सब लोग उठेंगे लोड विल इंक्रीज बिकॉज हीटर ऑन होगा, फैन ऑन होगा। देन as college starts at the 8:45, so faculty will come to the college, so again they will turn on the lights on the cabin, so load will again increase. As the time goes on, as temperature increases, what people will do, they will also turn on the AC, so again load will increase. So are you getting my point? तो हमारा जो कॉलेज का ट्रांसफॉर्मर है
उसके साथ जो लोड कनेक्ट किया हुआ है वो फिक्स नहीं है. It means it keep on changes. So for that transformer, what we are going to do? We are going to find out the all day efficiency के उसका पूरे दिन का efficiency क्या है. तो उसके लिए step down transformers used in the distribution purpose. So they are talking about the transformer which is installed in our campus. Second is they are connected whole day to the line but loaded at the different interval. That is the alag interval means condition uska fix nahi tha. They're kept in the operation for the 24 hours. That is also the constant. No, they means they are on for the whole period of their working. Thus, the iron loss occurred all day, but copper loss changes with respect to time. Iron loss हमारा पूरे दिन होगा, otherwise हमारा ये जो copper loss है that will keep on changing. Efficiency of all day is equal to output in kWh for 24 hours and input into the is equal to 24 hours. So this is how you define the efficiency. So if you are having any doubt, any query in this all day efficiency, this is a very important excision. Please let me know into the chat box. Let's move to the next part in the discussion. And so if you're not having any query, then I should go forward. Yeah, next is the Sumpner test, or we can say back-to-back test on the transformer. Now, again, we discuss about the two tests. दो टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए. एक टेस्ट हमने जो डिस्कस किया है वो है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट और दी सेकंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट. दिस टेस्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये टेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज द संपनर टेस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट और इट इज नोन एज अ बैक टू बैक टेस्ट. अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है. लिमिटेशंस इफ आई टॉक अबाउट द संपनर टेस्ट. So what are the limitations? Sorry, I'm not talking about the Sumpner test. I'm talking about the open circuit test. So suppose मुझे ट्रांसफॉर्मर के अंदर आयरन लॉस फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा ओपन सर्किट टेस्ट. और मुझे सपोज ट्रांसफॉर्मर का कॉपर लॉस फाइंड करना है, तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट. सो दिस इज दी वन ऑफ द लिमिटेशन वी कैन से. तो हम ये टेस्ट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द टेस्ट में जो आपको बताने जा रहा हूँ, द टेस्ट विच आई एम गोइंग टू शो यू, इन द टेस्ट वी आर गोइंग टू यूज द connections in which you will be able to perform this two tests parallelly. Is it clear? Again I'm repeating कि ये दोनों टेस्ट एक साथ हम एक ही सेटअप के अंदर कर सकेंगे. Okay, so that is the advantage of this Sumpner or back-to-back test. The full load test on a small transformer is very convenient, but on the large transformer it is very difficult. Large transformer में बहुत difficult रहेगा, because we didn't need a huge amount of current to perform this particular test. Okay, now हम ये टेस्ट से कर क्या सकते हैं? What we can find out? We can determine the efficiency as well as regulation and heating under the load condition. So these are the things which we can measure with the help of this test, and that is the advantage of it. There is the advantage of this particular test.
ओके, नाउ जस्ट लुक एट द कनेक्शन। तो अब ये टेस्ट के लिए आपको चाहिए क्या? यू नीड टू transformers. Just look at this, let me show you. And those two transformers are identical. Identical means same transformer होने चाहिए, and they are connected in the opposite polarity. Just look at, एक में से करंट इस तरह से जाएगा, तो दूसरे में से करंट जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, अब यहां पे क्या कनेक्ट करना है? यहाँ पे आपको एक सप्लाई कनेक्ट करना है, एक एमीटर और एक वॉट मीटर। This you need to connect on the one side. Similar way, you need to connect the voltmeter, ammeter, and the wattmeter on the other side. So this thing is common on both sides. Again, I'm repeating. Please listen my words carefully. Connect क्या करना है यहाँ पे? Primary के side एक voltmeter, ammeter and wattmeter. Secondary के side पे also एक voltmeter, ammeter and the wattmeter. तो ये दोनों चीज आपको कनेक्ट करनी है इसके साथ। Is it clear or it is not clear? मैं आपको वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ इसका, पर उससे पहले आपको ये चीज याद रखनी है। कनेक्शन एक बार देख लो, कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल, जस्ट लुक एट। ये टर्मिनल मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे, ये टर्मिनल मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे, और इसका कनेक्शन यहाँ पे, इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे, मीन्स इसको रिवर्स करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से आउटपुट, यहाँ से आउटपुट। So if you are having any query, any doubt, then let me know into the chat box. Please, any doubt, any query? Okay. तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है? हाउ टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल? सपोज आई वांट टू परफॉर्म द ओसी टेस्ट। मैंने क्या बोला था आपको कि दोनों टेस्ट एक ही सेटअप के अंदर परफॉर्म हो सकता है। वी कैन परफॉर्म बोथ टेस्ट और बोथ ऑफ द टेस्ट इन दी वन सेट ऑफ अरेंजमेंट। किस तरह से? लेट मी एक्सप्लेन। ओके, नाउ लेट्स से कि मुझे ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है। सो टू परफॉर्म द ओपन सर्किट टेस्ट यू नीड टू कीप दिस स्विच ओपन। ये स्विच को आपको रखनी पड़ेगी ओपन। आफ्टर कीपिंग दिस स्विच यू नीड टू गिव द रेटेड वोल्टेज फ्रॉम दिस साइड। रेटेड वोल्टेज मींस लेट्स से कि ये दोनों ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 230 वोल्ट and 50 hertz. So that voltage you need to give it from this side. So as you give the voltage, as this switch is open, so ultimately ये आपका second रहेगा open. And in that condition, this wattmeter will show you some reading. ये wattmeter कुछ reading बताएगा, जैसे कि reading मिले थे हमको open circuit test में। Let's say कि wattmeter का reading है 200 watt. So ये 200 watt किसका reading है? Loss inside this transformer 1 as well as loss inside this transformer 2. So if you divide it by 2, then your answer will be 100 watt. So that is the loss in the one transformer, and that loss is your equal to your core loss. Is it clear? Is it clear? Please respond into the chat box. Okay. Now going to the next part in the discussion.
अब सेकंड प्रैक्टिकल जो परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे वो है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सेम के अंदर दोनों प्रैक्टिकल। तो फॉर द प्रैक्टिकल यू नीड टू क्लोज दिस स्विच, you need to close this switch. Now after closing this switch you need to increase this voltage gradually. आपको ये वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करना है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि सपोज यहाँ पे इसका मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर है एज पर द डेटा शीट, इसका करंट मैक्सिमम 10 एम्पियर है, तो यहाँ करंट 20 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल। क्या करना है, अगेन आई एम रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल, और आपको जब भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है, क्या करना पड़ेगा आपको, इस साइड से यू नीड टू क्लोज दिस स्विच। एज यू क्लोज दिस स्विच, जैसे आप स्विच क्लोज करोगे आपको इधर से देना पड़ेगा वोल्टेज। यू नीड टू गिव द वोल्टेज फ्रॉम दिस साइड, एंड एज यू गिव द वोल्टेज फ्रॉम दिस साइड, आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो टोटल एमीटर करंट है वो रेटेड करंट से बढ़े ना। ओके, अब क्या होगा कि जैसे कि करंट का मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूं यहाँ पे, तो करंट कुछ इस तरह से जाएगा। लेट मी शो यू। यहां से यहाँ गया, फिर यहां से होके कुछ इस तरह से जाएगा, तो यहां से करंट आएगा नीचे। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, करंट यहाँ गया इस साइड पे और यहाँ जा रहा है, इसको भूल जाते हैं अभी, अपर साइड पे, और यहां से करंट आ रहा है कुछ नीचे। तो यहाँ पे जो आपको करंट मिलेगा वो मिलेगा दो, बिकॉज यहाँ पे दोनों के अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा दैट विल बी ऑलवेज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ से एज्यूम करते कि करंट यहाँ से यहाँ पे इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से करंट जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जाएगा यहाँ पे, देन इट विल गो अपर ओवर हियर। इस तरह से कुछ करंट फ्लो होगा इन द ट्रांसफॉर्मर। So again, what is the advantage over here कि यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मर को शॉर्ट नहीं करना पड़ेगा। You don't need to short the transformer over here. So circulating current will flow in during the short circuit test. शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान ही दोनों ट्रांसफॉर्मर के अंदर करंट फ्लो होगा by this way. Is it clear or it is not clear? Please let me know into the chat box यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो। अदरवाइज आई विल कैरी फॉरवर्ड माय डिस्कशन। तो इस कुछ तरह से ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है। So whatever I explained to you, that is in this particular slide. तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, करंट का कैसे फ्लो होगा। इट विल गो फ्रॉम ए टू आई एंड देन जे, जे से जाएगा वो सी, देन डी, देन एल, देन के, देन ए अगेन। तो कुछ इस तरह से करंट होगा फ्लो in the loop when you are performing the short circuit test. Again मैं फिर से रिपीट करता हूँ, it will go from A to I, A to I, just look at my arrows, from I to J, from I to J, then C to D, sorry I to J, J to C, J to C यहाँ पे आ रहा है, C to D, इस तरह से, just look at this, C to D, then D to L,
L to K and K again to A. So this is how your current flows in the during the implementation. So whatever I explained you, दोनों का discussion ये दोनों slide में detail में है. So I think you are able to understand this. So I'm not going in the much detail. Is it clear? Please respond into the chat box. Okay. आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. We are clear to this point, then I think we should start the discussion on the next topic. ओके अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Now what is auto transformer? Auto transformer is having the only one winding. देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है दो वाइंडिंग, प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी. But in the case of auto transformer, only one winding is there. So यहाँ पे ये बनाएगा प्राइमरी, यहाँ पे ये बनाएगा सेकेंडरी. तो ये वाइंडिंग को क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉमन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जैसे कि यहाँ पे करंट आ रहा है I1, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे करंट जा रहा है I2. देन यहाँ पे कितना करंट जाएगा? I2 minus I1. ऑब्वियसली बिकॉज ये करंट यहाँ से यहाँ जाएगा I2, बिकॉज ये करंट यहाँ जा रहा है, I2 ऑपोजिट में आ रहा है, तो यहाँ पे करंट क्या आएगा? I2 minus I1. इज इट क्लियर? मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, देख लो एक बार. यहाँ पे करंट क्या है? करंट I2 यहाँ से जा रहा है और करंट I1 ऑपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पे बोलेगा I2 minus I1. हाँ, अब इधर से आओगे, इसको रेफरेंस लोगे तो यहाँ पे आएगा I1 minus I2. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि ये पार्ट में करंट कितना है, तो I1. यहाँ पे करंट कितना है? I2 minus I1. So this is the difference that you should remember in this particular case. Is it clear? Okay, okay, fine. Okay, please, I got your message. Now, this you should understand over here. So if you're any query, then let me know in the chat box. Just look at this. The auto transformer has a single continuous winding which is used for input and output voltages as shown in the figure. तो ये है कुछ एक ही वाइंडिंग जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में है, कॉमन है. A portion CB of the primary winding and AB used as a secondary winding. Let me show you. तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये जो पोर्शन है उसको हम यूज करेंगे एज ए सेकेंडरी और इसको यूज करेंगे हम ये इसको यूज करेंगे AB को. AB हमारा होगा प्राइमरी, बिकॉज ये इस साइड से देखो तो ये हमारे पास इतना वाइंडिंग है. AB विल यूज एज अ प्राइमरी एंड CB विल यूज एज अ सेकेंडरी. ओके, so again I'm repeating. फिर से मेन चीज आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ. A portion of CB of primary winding used AB used as a secondary winding. Just look at on this diagram. ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी और ये सेकेंडरी. अब किस तरह से?
It used where the transformer ratio differs from the liter unity. Its theory is operational principle is similar to the two winding. If N1 is the primary winding turns and N2 is the secondary winding turns, then transformer ratio is K. तो वो तो रहेगा सेम. बट इसको क्या बोलेंगे, वेरिएक बोलेंगे, जो आपने लैब में यूज किया हुआ है ऑलरेडी. You already used or you already use this variant in the lab. So that is very important. Now let me show you. The auto transformer is definition. Transformer consists of only winding with the part of turns being common to primary and the secondary. It is a transformer which part of the winding is common from primary and secondary. Part of load receiver circuit is supplied directly from the primary and remainder being supplied indirectly to the secondary by the electromagnetic induction. अब यहाँ पे मुझे कोई डिफरेंस बताएगा कि ये जो हमारा ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है और हमारा जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है, इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? कोई बता पाएगा? प्लीज लेट मी नो इनटू द चैट बॉक्स. व्हाट इज द विजिबल डिफरेंस between the your normal transformer and this transformer? प्लीज लेट मी नो इनटू द चैट बॉक्स कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. What is the difference between these two transformers? Any one of you? दोनों के बीच में चलो कौन किसके अंदर कॉपर ज्यादा यूज होगा? लेट मी गिव द हिंट. हिंट इज कि कौन से ट्रांसफॉर्मर के अंदर कॉपर ज्यादा यूज होगा? In which transformer we are going to use more copper? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा कॉपर यूज होगा कि ये नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा कॉपर यूज होगा? प्लीज रिस्पॉन्ड इनटू द चैट बॉक्स. Giving you 2 minutes to respond. Yeah, just got the response. No dear, no dear. Just look at कि इसके अंदर एक ही वाइंडिंग है और इसके अंदर हमको दो वाइंडिंग यूज करने पड़ेगा, तो किसमें ज्यादा कॉपर यूज होगा? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में या ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर में? समीर, इफ यू कैन जस्ट रिस्पॉन्ड. या करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. गौरव, गौरव योर आंसर इज करेक्ट. रोहित योर आंसर इज करेक्ट. तो ऑब्वियसली नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर के अंदर कॉपर ज्यादा यूज होगा. तो पहला होगा ये डिफरेंस. चलो, कॉपर ज्यादा यूज करेंगे तो एफिशिएंसी कम आएगी. सो व्हाट इज एडवांटेज? एज वी आर यूजिंग लेस कॉपर इन दी ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ओवरऑल कॉपर इज सेव. ओवरऑल कॉपर का सेविंग हो रहा है एंड एफिशिएंसी इज आल्सो गोइंग टू बी लेस अफेक्टेड. तो एफिशिएंसी उसके अंदर कम अफेक्ट होगी. तो नेक्स्ट है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है जीटीयू एग्जाम के लिए कि हम यहाँ पे कितना कॉपर सेव कर रहे हैं इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर. सिंपल थियरी.
कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितना कॉपर का शेविंग हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम कुछ इस तरह से कि वेट ऑफ कॉपर इज डिपेंडेंट अपॉन दी नंबर ऑफ टन्स, कितने टन्स लगाए हुए। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये पैरामीटर्स ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए, कि हमारे पास दो सेक्शन है सी बी एंड ई बी। जस्ट लेट मी शो यू। वी हैव द टू सेक्शंस ओवर हियर। दिख रहा है आपको सीबी का सेक्शन, सीबी सेक्शन, इसको बोलेंगे हम एक सेक्शन, और दूसरा सेक्शन है हमारा ए बी वाला सेक्शन, ए बी। दिख रहा है ये दो सेक्शन आपको। अब ये दोनों सेक्शन के अंदर मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूँ। सीबी सेक्शन के अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे N2। एसी सेक्शन के अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स है N1। सीबी के अंदर N2, यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ N2, और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये साइड पे टर्न N1। एरो दिखा देता हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो ये हो गए टन्स की बात। अब यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर इन द एसी सेक्शन, देखो वेट ऑफ कॉपर इन द एसी। तो यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा N1 माइनस N2। यस और नो? ठीक है, तो वो क्या आएगा N1 माइनस N2 इंटू I1। चलो फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे करंट कितना है I1, टर्न्स कहाँ पे कैसे लगाया मैंने N1 माइनस N2 इंटू I1। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। वेट ऑफ कॉपर इन दी BC सेक्शन, लेट मी शो यू दैट सेक्शन। या इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा N2 इंटू I2 माइनस I1। देखो N2 यहाँ पे टर्न्स है, करंट यहाँ पे ये सेक्शन के अंदर कितना है I2 माइनस I1। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ दी। तो ये टोटल जो लग रहा है ये कॉपर है किसके लिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए। अब नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर तो अब टोटल कितना होगा, ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। सो इफ यू ऐड दिस टर्म दिस टू थम थिंग्स ओवर हियर, इसको और इसको ऐड करो तो आपको आंसर मिलेगा ये वाला। तो ये है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स यूज्ड इन दी ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर क्या आएगा, नॉर्मल में आएगा कुछ इस तरह से आंसर कि N1 I1 प्लस N2 I2, बिकॉज नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर हमारा प्राइमरी है और सेकेंडरी है, तो उसके अंदर आएगा N1 I1 एंड N2 I2। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द ट्रांसफॉर्मर। नाउ यहां से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर दो, अदरवाइज सेशन की अटेंडेंस की लिंक चैट बॉक्स में रखी हुई है। You can drop your number over there and you can leave the session. Have a good day.
Please share your attendance on this link. After sharing the attendance, you can just leave the session. Have a good day. Link is there in your chat box, please.